The City of Knowledge hosted a wonderful workshop today on an Islamic perspective to climate change and environmental degradation, in which they involved imams, scholars, ulama, students. The whole environmental case is not because scientists are saying we must do this, it's because the Holy Quran is telling us that we should have sorted these things out way before. Whatever we do to tackle climate change, to tackle environmental destruction, is an act of ibadah, is an act of iman. In relationship with God, हम अब्दुल्लाह हैं, हम अल्लाह के सिवा किसी और को सजदा नहीं करते, हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं। और in relationship with universe हम खलीफतुल्लाह हैं, तो लिहाजा हम तस्खीर कायनात तो करेंगे, लेकिन खलीफतुल्लाह एज ए वाइसरेंट टू ऑलमाइटी गॉड की हैसियत से। जब अल्लाह ताला ने ये इरादा फरमाया कि वो अपनी सिफात का इजहार फरमाए, तो उसने कायनात को तख्लीक फरमाया, उसने आलम को पैदा किया। तो ये कायनात मैनिफेस्टेशन ऑफ द एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑलमाइटी गॉड है, लेकिन इस कायनात में ये सिफत नहीं है कि वो अल्लाह की सिफात का मजहर अतम बन सके। तो परवरदिगार आलम ने आदम की तख्लीक फरमाई जो अल्लाह की सिफात के मजहर कामिल है। तो गोया कि अब आप कायनात के ज़र्रे ज़र्रे का एहतराम करते हैं, लिहाजा अब किसी दरख्त को काटना, किसी चींटी को मसलना, इस फिज़ा को आलूदा करना, ये तमाम बातें आपके पेश नज़र इसलिए रहेंगी कि ये अल्लाह तबारक व तआला की सिफात का मजहर है और ये इंसान उसका मजहर कामिल है। इस वक्त अगर मैं ये कहूँ कि चंद बड़े मुस्लिम दुनिया के मसाइल जाने जाएं इंटरनेशनली, एक बहुत बड़ा मसला एनवायरनमेंट का है। सो आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल दैट यू हैव ब्रॉट द कैटेगरी ऑफ एनवायरनमेंट टू आवर imams. Well, we give lip services that our imams are great, but socially, economically and culturally the society has actually put them at the margins. They do not have any exposure whatsoever to what should be discussed, debated, and what are the methods, how to look at them. So I think we all should be really thankful to Dr. Saab that he has actually invested a lot of time, energy, focus to you guys. In last 4 centuries, since the Industrial Revolution, which started in 16th century in Europe, because of the scientific advances by UK, by France, by Germany, it has disrupted the pattern of the nature. We started to explore the fossil fuels. We needed fuel to run the industries. That's how it started. The fossil fuel disruption led to the emission of gases of carbon monoxide, carbon dioxide, nitrous oxide, which led to the disruption of the ozone layer. Today I am here at City of Knowledge, and a very productive training session was held regarding climatic change, specifically and particularly for the ulama and imams of the mosques of the Pakistan. It was such a good initiative, and we have learned a lot about the climatic change and its consequences. मैं शुक्रगुज़ार हूँ ये सिटी ऑफ नॉलेज इंस्टीट्यूट वालों का, उन्होंने इस तरह के जो प्रोग्राम करके जो माहौलियाती तग़य्युरात के नतीजे में पैदा होने वाले असरात से लोगों को आगाह कर रहे हैं, और ये एक बहुत ही अच्छी काविश है। इस इदारे में सबसे पहले तो इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें हमेशा की तरह दुनिया के जो आलमी सतह के मसाइल और मुश्किलात होते हैं उनके हल, उनकी टैकलिंग के लिए जो सेशंस रखे जाते हैं, उनमें आगाही के सेशंस, उनमें हमेशा से मदऊ भी किया और इनसे हमेशा की तरह सीखा भी। जिस तरह पहले कुछ अर्सा पहले डॉक्टर इब्राहिम अलाउद्दीन भी आए थे, उन्होंने सोसाइटी के हवाले से बात की, उस हवाले से भी यानी जो भी दुनिया के मसाइल हैं रिलेटिव नहीं यूनिवर्सल तरीके से वो इनको हल करने का तरीका बताते हैं। इस तरह की जो प्लेटफार्म है, ये हमें इस तरह बोलने के सिखाते हैं, बड़े बड़े लोगों से हमें मिलने का एक मौका मिलता है और काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो हम डॉक्टर उमैर महमूद सिद्दीकी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने हमें मौका दिया। If our earth is polluted, then is our prayers being accepted? Are they valid? And there's a hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam that says the entire earth is a masjid. You know, so this was a massive pivotal moment. So I started going through a journey and looking through the Quran and Sunnah, and it just excites me every time I learn something new. The City of Knowledge के प्लेटफॉर्म से जो हमें आज की इमाम्स और इमाम मसाजिद के हवाले से आगाही मुहिम के हमें बेहतरीन वर्कशॉप का इसमें शिरकत का मौका मिला और बहुत कुछ सीखने को मिला। सिटी ऑफ नॉलेज में जो उलमा किराम का ये ओरिएंटेशन क्लाइमेट पे जो बात हुई
वो आज हम सब ने जो कुछ यहाँ सीखा वो अपने मसाजिद और मदारस में इंशाल्लाह हम सब कोशिश करेंगे कि वहाँ पे हमारे जो माहौल में जो असरात हैं वहाँ पे इम्प्लीमेंट करें। तो मैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद उमैर सिद्दीकी साहब, जनाब कामरान शहजाद साहब और जनाब सैयद एजाज हमदानी साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस इतने अहम तरीन आलमी और कायनाती मौजू के ऊपर एक बहुत खूबसूरत और बड़ी बेहतरीन बड़ी इफ़ेक्टिव वर्कशॉप का एहतमाम किया और इंशाल्लाह हम सब लोग मिलकर इस कॉज में उनके साथ भरपूर कोशिश करेंगे। इमाम्स मास्क और क्लाइमेट चेंज के मुतल्लिक़ तो यहाँ पर बहुत सीखने को कुछ मिला। जो ये देखा जाए तो ये बहुत ही जो है अहम मौजू है, इंटरनेशनल मौजू जो इंटरनेशनल प्रॉब्लम है जिसको हम जो है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम हल कर सकते हैं। तो सिटी ऑफ नॉलेज में इस बहुत सारे इस तरीके से वर्कशॉप होते रहते हैं। तो इसमें एक ये भी वर्कशॉप हुई, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हम शुक्रगुजार हैं डॉक्टर उमैर महमूद सिद्दीकी साहिब के कि उन्होंने हमें इस एक बेहतरीन मौजू पे जिसके मसाइल और के लिए बिलखुसूस पाकिस्तान और इसके अलावा तमाम कंट्रीज़ मसाइल का शिकार हैं, तो इसके लिए मदऊ किया और इसमें एक अच्छा सीखने को मिला। और जहाँ तक बात है कि हम अपना भी किरदार इंशाअल्लाह इसमें वक्तन फ़वक्तन ज़रूरत पड़ने पर देंगे। MashaAllah, City of Knowledge is a wonderful institute doing great work to spread the word of Islam, to spread the Islamic perspective on various social issues, to train students to become beacons of society. And I spent the day here at the City of Knowledge Institute, and I've seen great facilities, great people. There's a great vision for what needs to happen, and I, for one, am very happy and proud to be here. And I have no doubt that there are future leaders who have already come out from here and will continue to be produced from this institute. अगर इस्लामी तालीमात इतनी गहराई में जाकर हमें हिदायत दे रही हैं कि इमाततुल आज़ा अनित तरीक़, तो अगर इमाततुल आज़ा रास्ते से हटाने का हुक्म है, तो फ़िज़ा में अगर आलूदगी और अज़ा और तकलीफ़ पैदा होती है तो क्या हमें उसे दूर करने का हुक्म नहीं होगा? दुनिया में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन इस्लामी ममालिक में नहीं, गैर मुस्लिम ममालिक ने इसमें ज़्यादा तरक्की की है। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर आपको एनवायरनमेंट को तबाही और नुकसान पहुँचता हुआ आप देखेंगे तो उन ममालिक की तरफ से ज़्यादा है जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ ज़्यादा जाए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जब कभी भी पाकिस्तान तशरीफ़ लाएंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इंशाअल्लाह ताला यहाँ ज़रूर तशरीफ़ लाएंगे और हमारे अहले इल्म को, कराची के लोगों को इसी तरह इफ़ादा और इस्तिफ़ादे का सिलसिला भी हम जारी रखेंगे।